we will go into the detailed part. Okay. So now what we actually do in MS Word. Suppose you want to print your name in MS Word for one time. The name is ABC, and normally we need to print our name for 5 times. So in MS Word, we directly do Control C to copy the content, and then normally we start Control V to paste it again and again. So if we have very less work to do, that we are required to print our name for the 5 times, suppose we are required to do this task for 50 times. So Control C and Control V 5 times, then 50 times. So it will be time taking, right? So these are the process. What we are actually doing, we are repeating the process. So the direct relation of loop is to repeat some process. The direct relation of loop is to repeat some process. It can be any process that we want to repeat. Suppose nowadays people are using agentic AI, right? So in agentic AI, what they are doing, they are creating their own agent to perform their daily task. Suppose you are manually doing, you just open the Chrome browser, right? Then you read the emails, then you reply the email, right? Similarly, you download something, whatever the attachment is given in the email. So this thing we are doing manually, but we can create our AI agent. We can create our AI agent. So this agent will be doing the all task. We do not need to open the Chrome. It will automatically open the Chrome. It will just log in using ID and password, whatever is there. Then it will read all the emails. It can reply to the email. It can generate your email content. It can download your files and can save in any drive or folder wherever you want to keep it. So these things are manually were earlier doing, people were doing manually, but nowadays people are using agentic AI. So they are creating agents. So in later classes, when you will be learning AI and ML part, I will be telling you. But yes, here we are repeating some part. So another example of repetition, suppose many times you have any washing machine, right? So in washing machine, whatever you do, you set the timer. You set the timer for 30 minutes, 5 minutes, 10 minutes or something. So what happens? That machine keeps working for that particular time. So it is also repeating the task. So this is the very easy example that you can understand. In MS Word, we just copy and paste the content for 10 time, 50 time, 100 time. Similarly, we can have another example. Suppose we have any email. We have any email related problem. Suppose we have any email like abc@gmail.com, right? abc@gmail.com. Now I have 10,000 email. I have 10,000 email, and I immediately need to send these emails to all people. I don't want to copy and paste. So I will develop such kind of application where I will be uploading all my emails over here. So I will upload all emails, and then I have to write some content, any attachment, whatever we have, then just I will send. So what will happen? It will create batches. That means 500 emails will be sent in one slot. Another 500 emails will be sent in one slot.
500 emails will be sent in one slot. When I was working in HP, so I had this kind of problem. But the problem was to send email in 193 countries, around in 57 languages. So in 193 country around, we might be sending about 100 million email, 100 million emails every day. So that these emails were fetched from database or something. So that kind of problem that we were solving. So now you will understand, from here to here, there is a big scope. This chapter is very important. That's why this chapter becomes very important to understand the things. And once you understand it properly, then you will enjoy. There will be no problem. So now we are ready. Why do we use the loop? So the purpose of the loop is to repeat any process again and again. Basic purpose of loop is to repeat any process again and again. There is nothing inside this. Okay. So let me change this one. Hmm. So I would like to repeat the process. Just give me 1 minute. What is happening over here? Let me close it and then open it again. Hmm. One more. Now it's fine. So there was something. So first we will understand the syntax. What is the syntax of the loop? So in syntax, we can say we just write, we have for loop, right? So we have some initial condition, initial value, or we can say any initial point. This is the syntax, not a programming part. Then we have some condition. Then we have some condition. Then we have some part to increment or decrement. You can say ahead, step ahead or step back. या तो हम आगे जाएंगे या फिर हम पीछे जाएंगे. तो इस तरह से हमारा लूप का कंडीशन होता है. तो अब लूप के हम यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में समझते हैं. ठीक. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. आई वांट टू प्रिंट माय नेम 5 times. Print the name 5 times. So we will understand using it a flow chart. Then we will be okay. So how many times we want to print our name? For the 5 times I want. So I will start from 1 and I will be keep going up to 5th step. That means if I am going for the 5 times to do any task, right? Then my loop will be completed. So I will draw the diagram. So here I will start. Then we have some initial value. So initial value we can take value as x, or you can take any variable. So I'm taking it as x, and then I will check the condition. I will check the condition. If x is less than or equal to 5, and if the condition is true, till then print my name. Till then print my name. So I'm using a parallelogram to print the name as, suppose my name is A, and if the condition is not true, then just stop. Okay. And after printing
what to do? Increase the value of x by one step. Increase the value of x by one step. And again, go to this place. Again, go to this place. Okay. So how I will start? See this dry run very carefully. Then you will understand everything. Okay. So I am removing the rest of the things from here. Okay. So what is the value of x? Create this diagram. Inside the memory, the value of x is 1. Now the initialization part is done. We will not come again at any condition. Now this is the second place where we will go. It will check x less equals 5. So what is the current value of x in the memory? The current value of x is 1. 1 less equals 5. Condition is true. So condition is true, then it will go into the yes part and it will print A. It will print A. Now I am printing A. Then, so at this place we are going again, and after printing the value of x will be incremented by 1. That means whatever the current value of x is in the memory, 1 will be added. So what is the value in the memory? 1. So 1 will be added, 1 plus 1. Now it will become 2 in the memory. Now it will become 2 in the memory. Now again, it will go to step 2. It will go to step 2. It will check the condition again. X less equals 5. So what is the current value of x in the memory? That is 2. 2 less equals 5. Condition is true. Now condition is true. What is the next step? Print A. That means 2, 3, 4. These will be repeating. So see it very carefully. It will print A. Now it has again printed A. It will increment the value of x by 1. What is the current value of x in the memory? Tanu, please tell me. Hmm. What is So please the can you repeat the question? what is the current value of x in the memory? सर अभी 2 थी, उसके बाद एक और इंक्रीज हो जाके 3 हो जाएगी. वेरी गुड. तो अभी लास्ट में करंट मेमोरी में वैल्यू क्या है हमारे पास? 2. तो 2 प्लस 1 जैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो मेमोरी में वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. ओके. Now this will go again to check the condition. Now it will check 3 less equals 5. 3 less equals 5. So it has printed. Then it is coming over here. 3 less equals 5. Yes. Print A. So now it will print this one. Value of x will become 4 in the memory. So now it is 4. Again it will go to this step. Step number 2. Now it will check 4 less equal 5. Similarly, things are happening. So it will print the value of A. Now it will again increment. The value will become 5. So in the memory, I will write as 5. Now it will come to step 2. 5 less equal 5. It is equal to 5. One condition is satisfied, that is true. So it will again come to step 3 and print value of A. Now it will become 6 at this place. Now the value of x will become 6 in the memory. Then it will come and check the condition. 6 less equals 5. No, it is coming to stop. So this way this loop will be working. So I'm printing my name. Suppose I do not
want to print my name, I just want to print the value of X. What will be the output? Everybody, think it carefully. If I don't want to print my name, I just want to print the value of X. What will happen? सर प्रिंट एक्स कर देंगे हम लोग. Yes. So value of X will be printed every time. That means it will start from here. Okay. Now it will start from here. So this will become 1. 1 less equals 5. Again, it is going to this step. Print value of X, 1 will be printed. Now at this place, value will be incremented by 1. So X plus 1 and then value will be assigned into X. Now it will become 2 at this place. So this will become 2. Again, it will go to check the condition 2 less equals 5. Yes. Again, print the value of X. The current value of X in the memory is 2. So this will print the value. हाँ, just a sec. अच्छा. हम्म. Okay. Now, so at this place, the value will be incremented by 1. So now it will become what? Now it will become 3. And this will be checking again 3 less equals 5. Condition is true. Print the value of X. Okay. Increment by 1. Now this will become 4. Again, it will come to check the condition 4 less equal 5. Yes, it will print the value 4. Now it will increment by 1. That will become 5. Again, it will come to check this condition 5 less equal 5. Yes. So it will come to this place, print the value of X. And then increment by 1, it will become 6. Again, we will be coming over here to check it. This one, 6 less equal 5. So 6 is not less equal to 5 nor less than. So no condition is satisfied. So it will come to stop the condition. Any doubt, any question? अभी आप पूछ सकते हो. कोई डाउट हो, any doubt, if you have any doubt, you can ask me. So everyone is okay. Let me take another example. Okay. So if everyone is okay, then let me take another example.
सर आपका माइक ऑफ है एक्चुअली। Now it's audible. Yes, sir. Audible. Okay. Yes, sir, audible. Okay. So this time I will be printing the value of x, then increment the value by 1. Increment means how many steps I want to increment. Sometimes you might be getting different question. And then I will be again coming to check the condition. So this way I will be checking the condition. And if it is no, then simply I will stop. So let us do it dry run. Whatever I am doing, that is called dry run. Any programming, before doing any programming, try to write in copy, try to build your concept in such a way that I am telling you. In the same way, try to say. सेम बिल्कुल कहना सीखो, वैसे ही करना सीखो, आप बहुत अच्छा करने लगोगे. Okay. So let us quickly start the dry run. So my initial value is x equals 10. So I will create a memory block for x. The initial value is 10. Now I will come to this place. Here, whatever I am doing, I am checking the condition x less equals 15. That is current value of x in the memory is 10. Please be careful, right? Listen carefully. 10 less equals 15, less than or equal to 15. Any condition should be true. 10 से 15 छोटा हो या बराबर हो तब तक चलता रहेगा. तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिल गई. जब कंडीशन ट्रू मिली तो हम कहाँ पे आ गए, स्टेप 2 पे आ गए. प्रिंट वैल्यू ऑफ x. तो हम x की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे. तो करंट वैल्यू मेमोरी में x की क्या है, 10. तो मैंने 10 को प्रिंट कर दिया. अगेन x इक्वल x प्लस 1. तो x इक्वल x प्लस 1 हो रहा है. तो करंट मेमोरी में क्या वैल्यू है, 10. 10 प्लस 1 दैट इज बिकमिंग 11. तो अगले स्टेप पे ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी x की मेमोरी में और 11 हो जाएगी. 11 होने के बाद फिर से ये स्टेप 1 पे जंप करेगा. तो यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी. कंडीशन चेक होगी 11 लेस इक्वल्स 15. तो अगेन कंडीशन इज ट्रू. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ड्राई रन का. 11 लेस इक्वल 15 ट्रू. कंडीशन ट्रू मिल गई. स्टेप 2 पे पहुंच गए. प्रिंट वैल्यू ऑफ x. तो x की करंट वैल्यू हमारे पास मेमोरी में क्या है, इस समय 11 है. तो दैट वैल्यू आई विल बी प्रिंटिंग. मैंने 11 प्रिंट कर दिया. अगेन स्टेप 3 पर x इक्वल x प्लस 1. तो करंट वैल्यू मेमोरी में क्या है, यहाँ पर देखो 11 है. तो 11 प्लस 1 दैट विल बिकम 12. तो मेमोरी में वैल्यू यहाँ अपडेट होती जाएगी जैसे जैसे लूप चलता जाएगा. तो 12. नाउ इट विल अगेन कम टू स्टेप 1. यहाँ पे फिर आएगा. तो 12 लेस इक्वल्स 15. कंडीशन फिर से चेक करेगा. यस, कंडीशन अभी भी ट्रू है. तो यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट कर देगा और करंट वैल्यू जो भी मेमोरी में होगी वही वैल्यू प्रिंट होगी. तो मेमोरी में करंट वैल्यू क्या है इस समय, 12. सो 12 विल बी प्रिंटेड ओवर हियर. अगेन x इक्वल x प्लस 1. तो करंट वैल्यू क्या है मेमोरी में, यहाँ पर देखो मेमोरी ब्लॉक हमने बनाया 12. 12 प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13. तो मेमोरी में ओवरराइट होकर ये वैल्यू हमारे पास 13 हो जाएगी. 13 हो गई. अब यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करने आएंगे. 13 लेस इक्वल्स 15. यस. तो यहाँ पर प्रिंट वैल्यू ऑफ x. सो करंट वैल्यू ऑफ x इन द मेमोरी इज 13. 13 प्रिंट कर दिया. फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे स्टेप 3 पर. तो ये हो जाएगा 14. स्टेप 1 पे आएंगे, चेक करेंगे 14 लेस इक्वल्स 15. यस, अभी भी कंडीशन ट्रू है. तो यहाँ पर आएंगे स्टेप 2 पर और हम करंट वैल्यू जो मेमोरी में थी 14 उसे हम यहाँ प्रिंट कर देंगे.
अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, 15 हो जाएगी। तो मेमोरी में ये ओवरराइट होता रहेगा। जैसे यहाँ पर ये 15 बन जाएगी, यहाँ पे आप ये ब्लॉक बना लो, तो 15 अगेन कंडीशन यहाँ चेक होने आएगी, तो 15 लेस इक्वल्स 15, अभी भी कंडीशन ट्रू मिल गई, करंट वैल्यू x की यहाँ प्रिंट करेंगे, तो 15 प्रिंट कर दिया, अभी भी लूप चलेगा आगे। तो x इक्वल x प्लस 1, 15 प्लस 1 16 हो जाएगी। तो मेमोरी में वैल्यू इनफैक्ट यहाँ पर 16 हो जाएगी, दैट विल बी। बट यहाँ पे जैसे ही इस स्टेप पे आएंगे वापस चेक करने, तो यहाँ पर अब कंडीशन चेक होगी हमारी, जो वो हो जाएगी कि 16 लेस इक्वल्स 15। सो कंडीशन फॉल्स हो गई, 16 ना तो 15 से छोटा है ना तो 15 के इक्वल है। तो दैट्स वाई यहाँ पर अब ये नो के सेक्शन में चला जाएगा और हमारा लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ड्राई रन करते हैं। तो जब ड्राई रन करेंगे ना, तो अब हमने देखा कि वैल्यू आखिर कौन सी चेंज हो रही थी। तो वैल्यू x की चेंज हो रही थी, इनिशियल वैल्यू वाज 10, इट वाज बिकमिंग 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इस तरह से वैल्यू चेंज हो रही थी। और ये चेंजिंग वैल्यू हो सकता है हम यहाँ पे वैल्यू ना प्रिंट कराएं, यहाँ पर हम हेलो प्रिंट कराते, तब भी यही काम होता। तब हमारा हेलो कितनी बार प्रिंट होता, 5 टाइम प्रिंट होता। क्यों? क्योंकि लूप हमारा 5 टाइम ही चल रहा है। जो लूप का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है दैट इज रनिंग फॉर द 5 टाइम ओनली। 6 टाइम पे ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जा रहा है और फॉल्स की कंडीशन में चला जा रहा है। बाकी जब तक कंडीशन ट्रू मिल रही इसके अंदर आता है और अपना काम जो भी यहाँ स्टेटमेंट हमारे पास हैं वो सारे स्टेटमेंट करेगा। तो अब हम इसका एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे, फिर इसके डीप क्वेश्चंस में जाएंगे। मैं बिलीव करता हूं अगर आप 50 क्वेश्चन इसी तरह से ड्राई रन कर लें, यू विल एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइदर यू आर लर्निंग जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, एनी लैंग्वेज, राइट, सीक्वल डेटाबेस के लिए अगर AIML में जाओगे तो आपको ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपकी बहुत सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो इसका हम एक पहले प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और प्रोग्राम में केवल हमारा एजेंडा रहेगा कि हम अपने नेम को 5 टाइम प्रिंट करेंगे, दैट्स इट। तो नेम को प्रिंट करना है, प्रिंट द नेम फॉर 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स करना हो चाहे 50 टाइम करना हो, एक बार आपने लॉजिक बिल्ड कर दिया, दैट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो 5 टाइम करना है तो मैं यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू सबसे पहले लूंगा, तो उसकी वैल्यू हम x ले लेते हैं या i ले सकते हो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर हमने लूप को जब पाइथन में हम लूप चलाएंगे तो एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, तभी मैं आगे बढ़ूं। पाइथन में जब हम लूप की बात करेंगे तो हमें कुछ सिंटैक्स को फॉलो करना होता है, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि जब हम पाइथन में लूप को क्रिएट करेंगे तो हमें एक सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। तो इस सिंटैक्स को बेसिक हम लेते हैं और इसको बोलते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल का मतलब ही होता है जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तब तक तुम चलते जाओ। तो व्हाइल का मतलब ही है जब तक, अनटिल अनलेस, राइट। और ऐसे ही हम अभी आगे चल के फिर फॉर लूप पढ़ेंगे जो पाइथन में होता है, बट अभी हमारा यहाँ इससे नहीं मतलब है, व्हाइल लूप पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो व्हाट इज द सिंटैक्स? तो सिंटैक्स को यहाँ पे एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम सिंटैक्स लिखते हैं, वी हैव सम इनिशियल वैल्यू, दैट इज द इनिशियल वैल्यू। यहीं से हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल वैल्यू लेंगे, फिर हम यहाँ पर देंगे व्हाइल और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन को पुट करेंगे। यहाँ पे पैरेंथेसिस में कंडीशन पुट करेंगे, देन हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेटर दे देंगे। अब हम व्हाइल में अंदर क्या करना चाहते हैं, व्हाइल में हो सकता है हम अपने नेम को प्रिंट करना हो या हम कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने फिलहाल यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर हम कोई ना कोई स्टेटमेंट देंगे, दैट वी नॉर्मली कॉल्ड हैश से यहाँ पे कमेंट होता है। तो यहाँ पे हम कोई ना कोई स्टेटमेंट, या तो सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो अभी इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या है। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है किस चीज का, व्हाइल लूप का। तो मैं एक यहाँ पे पाइथन का कोड छोटा सा लिख भी देता हूँ जिससे हमें आसान हो जाए। तो माई एजेंडा इज टू प्रिंट हेलो 5 टाइम्स। अभी ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। हेलो को 5 टाइम्स करना, तो मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ले लेता हूँ x। मुझे पता है कि हम चाहे 1 से 5 तक चलें, चाहे 100 से 105 तक चलें, हमारा जो लूप होगा वो 5 टाइम चलना चाहिए। माई गोल इज टू डू दिस। तो हम यहाँ पर फिर लगाएंगे व्हाइल स्मॉल लेटर में, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे व्हाइल x लेस इक्वल्स 5, जब तक कि x 5 से छोटा है या 5 के बराबर ना हो जाए। बिल्कुल सिंपल। टिल देन यहाँ पे एक काम कर दो, वो काम क्या है, हेलो प्रिंट कर दो। हेलो प्रिंट कर दो और उसके बाद x की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट करते जाओ, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। तो ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम हो गया। अब ये वैसे ही चलता है जैसे हम लोगों ने अभी डायग्राम में ड्राई रन किया था। तो इसको चेक कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर कोड करते हैं। तो आप सबको पता है x की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे मेमोरी में क्या होगी, 1 होगी। 1 से यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेंगे 1 लेस इक्वल्स 5। बोलो कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा यहाँ पे। इस ब्लॉक में तभी आएगा जब कंडीशन इसको क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू मिली, यहाँ पर इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया। दैट्स इट। हेलो प्रिंट करने के बाद x इक्वल x प्लस 1 हुआ, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई। और 2 होने के बाद अब यहाँ पे अगेन कंडीशन को यहाँ चेक करने आ गया। तो अब फिर से चेक करेगा 2 लेस इक्वल 5, यस कंडीशन इज ट्रू। तो ट्रू है तो अंदर फिर आएगा व्हाइल लूप की बॉडी में और प्रिंट कर देगा हेलो। तो एक बार हेलो यहाँ फिर से प्रिंट कर दिया। अगेन यहाँ पे आएगा तो x इक्वल x प्लस 1, तो ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी मेमोरी में, 2, अब इस बार हो जाएगी 3। तो यहाँ पर फिर से आएंगे हम, यहाँ कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस इक्वल्स 5, यस प्रिंट हेलो। तो एक बार और हेलो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट का मतलब आगे बढ़ना, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। हो सकता है कल हमको क्वेश्चन करना पड़े जिसमें हम 10-10 का इंक्रीमेंट करें। तो जब 10-10 का इंक्रीमेंट करेंगे तो हम x इक्वल टू x प्लस 10 लिख सकते हैं। 5-5 का इंक्रीमेंट करना हो तो x इक्वल x प्लस 5 का करना होगा। तो अभी हम इंक्रीमेंटल ऑर्डर में चल रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू 3 हो गई थी, अब हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 4। और फिर से कंडीशन चेक करेंगे तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 4 लेस इक्वल 5 है कि नहीं, 4 लेस इक्वल 5 है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि ये ठीक है, 4 लेस इक्वल 5 होता है। तो प्रिंट किया हमने फिर से एक बार हेलो को, यहाँ 4th टाइम हेलो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद अब x की मेमोरी में 4 था, अब अपडेट होकर 1 का इंक्रीमेंट होगा 5 हो जाएगा। और फिर से यहाँ कंडीशन चेक करने आएंगे तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 5 लेस इक्वल 5, यस। तो फिर से व्हाइल लूप की बॉडी में आएगा और यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, हेलो को प्रिंट करेगा। तो अब यहाँ पे 5th टाइम हेलो को प्रिंट करेगा और यहाँ पर जब आएंगे तो अब स्टेप पे 6 हो जाएगा। और 6 जैसे होगा फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ चेक होगा 6 लेस इक्वल 5। अब 6 ना तो 5 के इक्वल है और ना तो 5 से स्मॉल है, तो कंडीशन यहीं से फॉल्स होकर टर्मिनेट हो जाएगी। अब अगले स्टेप पे चली जाएगी कि जो कुछ भी लिखा होगा उस स्टेप पर हम पहुंच जाएंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो? अभी मैं दोबारा बता दूं अगर कोई डाउट हो या किसी पॉइंट पे। इफ ओके देन आई विल गो अहेड। Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So now I am going to write the Python program. तो सिंटैक्स हमें ध्यान रखना है, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सेम कंसेप्ट लूपिंग की होती हैं। अगर व्हाइल लूप है, फॉर व्हाइल, डू व्हाइल सी लैंग्वेज में होता है, यहाँ पर हमारे पास व्हाइल और फॉर लूप होंगे।
तो चलो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 टाइम करना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाइल और कंडीशन बताऊंगा x लेस इक्वल्स 5, जब तक कि x की वैल्यू 5 से छोटी है या 5 के इक्वल ना हो जाए, तब तक कि क्या करो, नेम को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर हमने नेम को, जो भी नेम हमें देना है, तो हमने जैसे दे दिया एलेक्स, तो एलेक्स नेम हमने दे दिया। और इंक्रीमेंट करना है तो हमने x इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा, या पाइथन में आपको ऐसा भी कहीं लिखा मिल जाए तो कोई बात, वही है x प्लस इक्वल टू 1। तो अब मैं आगे इसको बताऊंगा कि ये आखिर क्या होता है, इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, तो अभी इसकी नीड नहीं है, दैट्स वाई मैं अभी इसको स्किप कर दे रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल ऑर्डर में हम लोग चलते हैं। बस हो गया हमारा प्रोग्राम, ठीक है। मैं इसे डीबग करके भी आपको दिखाऊंगा, और इसका पहले हम रन कराते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने ले लिया पाइथन डीबगर, और टर्मिनल में रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। देखो 5 टाइम एलेक्स आ गया। अब देखो कितना काम आपका आसान हो गया। मान लो हम इसको कर दें 20 टाइम्स, ओके। यहाँ कुछ भी वैल्यू हम, हो सकता है 20 टाइम हमें एलेक्स करना हो, तो लेट मी रन इट अगेन। हमने यहाँ कंडीशन में चेंज कर दिया थोड़ा सा, ये देखो, तो यहाँ एलेक्स 20 टाइम आ गया, राइट। इसी तरह से हमें 2000 टाइम करना हो, बस ये ध्यान रखना है। अभी मैं इनफाइनाइट लूप की भी बात करूंगा। कई बार हम लोग ऐसा कर जाते हैं, लॉजिकल एरर, जिसकी वजह से हमारा लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, और वो काफी ध्यान देने वाली जरूरत है कि वो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कहीं ना कहीं, अगर आप इंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन में काम करते हो तो इसलिए काम करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम 2000 भी करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार हमने रन कराया और देखते हैं रिजल्ट को। ये देखो चल रहा है अभी एलेक्स, ओके। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं एलेक्स की जगह पर केवल एक्स की वैल्यू अगर प्रिंट करा दूं, तो अब तो सबको पता है कि हर बार कौन सी वैल्यू चेंज होके आ रही है, एक्स की। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स को प्रिंट कराऊंगा तो हर बार जो चेंजिंग वैल्यू एक्स की होगी वही वही प्रिंट होगी। तो यहाँ पे इस बार मैं 2000 अभी नहीं करता हूँ, अभी मैं सिर्फ 5 ले लेता हूँ, जिससे हम चीजों को टेस्ट कर पाए। तो यहाँ पे 5 कर दिया। अभी एलेक्स नहीं करते बल्कि एक्स को प्रिंट कराते हैं। तो जो भी मेमोरी में एक्स की वैल्यू बदल बदल के आएगी वो प्रिंट होती जाएगी। तो यहाँ पर सी 1 2 3 4 5, दैट इज ओके। अब हम इसको अगर 50 भी कर दें तो ठीक है, हमारा लॉजिक बिल्ड हो गया है। अब हम इसको हायर वैल्यूज पे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम, ये देखो, हमारे पास 1 से लेकर के 50 आ गया। अब एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप करने वाले हो, बहुत सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने 5 टाइम कर लिया, ओके। तो अब मैं इसको डीबग करके भी दिखाता हूँ कि देखो मेमोरी के अंदर क्या होता है। तो जब मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, इधर मैं ले जा रहा हूँ, और कंडीशन के सामने देखो यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू ऐड ब्रेक पॉइंट। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, रेड हाइलाइटर आ गया। और थोड़ा सा मैं इसे डीबग मोड में ले जाता हूँ, तो क्योंकि हमें डीबगिंग भी करना होता है हम लोगों को। तो जब भी हम कोडिंग करेंगे या सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे तो वहाँ डीबगिंग की नीड होती है। तो यहाँ पर हम डीबगिंग ले लेते हैं। तो देखते हैं मेमोरी में कैसे कैसे मैंने जो मेमोरी के ब्लॉक बना के आपको दिखाए थे वैसे ही आपको दिखेगा। देखो अभी एक्स की वैल्यू करंट क्या है मेमोरी में, 1। तो अगर हम इसको ये देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर भी हाइलाइटर है। अब यहाँ से हम जैसे F10 करेंगे तो F10 से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो अब यहाँ पर अभी भी x की ही वैल्यू प्रिंट करने जा रहा है, क्योंकि करंट वैल्यू मेमोरी में x है। और यहाँ पर भी देखो हाइलाइटर पे दिखा रहा है येलो वाले पे, तो करंट वैल्यू x विल बी प्रिंटेड। और फिर मैं जैसे F10 करूंगा, अब नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ जा रहे हैं, x इक्वल एक्स प्लस 1। ध्यान देना, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। जैसे ही हम स्टेप लाइन नंबर 6 से वापस लाइन नंबर 3 पे जंप करेंगे कंडीशन चेक करने के लिए, मेमोरी में x की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पर देखो क्या हो गया, 2 हो गई x की वैल्यू। तो अब 2 लेस इक्वल 5, यस कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर आए, x की वैल्यू
2 को प्रिंट कर दिया। तो देखो टर्मिनल में भी यहाँ पे देखो प्रिंट होता जा रहा है, ये देखो, तो यहाँ प्रिंट हो गया। अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है मेमोरी में 2, यहाँ पर भी 2 है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे गए, ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और x की वैल्यू हमारी हो गई 3, 3 लेस इक्वल 5, कंडीशन इज ट्रू, एंटर। x की करंट वैल्यू 3 है और वो प्रिंट हो जाएगी। नाउ दिस विल बी प्रिंटेड। अगेन हम स्टेप 6 पे जंप कर गए, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 3 थी, जैसे ही आगे बढ़ेंगे x की वैल्यू मेमोरी में 4 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो फिर से चेक करेगा, 4 लेस इक्वल 5, कंडीशन अभी भी हमारी ट्रू चल रही है। तो ठीक है, व्हाइल लूप की बॉडी में आ गए। तो व्हाइल लूप की बॉडी में हमारे पास लाइन नंबर 5, 6 पे ही चीजें लिखी हुई हैं, 4 को कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखो प्रिंट हो गई टर्मिनल में। अब फिर से 1 का इंक्रीमेंट होगा। नाउ x हैज बिकम 5, 5 लेस इक्वल 5, तो इक्वल तो है ही है, लेस नहीं है, तो कोई एक चीज तो मैच ही कर गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 प्रिंट करेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू टर्मिनल में 5 प्रिंट हो गई। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जंप करेंगे, देखो x की वैल्यू 6 हो गई और 6 लेस इक्वल 5 नहीं होता है, तो अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब इसके आगे एक्चुअली हमारे पास कोई कोड ही नहीं लिखा था, तो अब आगे उसने कोई काम ही नहीं किया। तो ये हमने देखा कि x की वैल्यू को हम अगर प्रिंट करा रहे हैं तो ये देखो हो रहा है, हम नेम को प्रिंट करा रहे हैं तो ये हो रहा है। तो ये एक बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है, बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन। अब इसी में हम छोटा सा एक और लॉजिक लगाएंगे कि ठीक है, हमने 1 से 5 तक प्रिंट कर लिया, हमने नेम को 5 टाइम प्रिंट कर लिया, हम 50 भी कर देते तो 1 से 50 तक प्रिंट हो जाता। ओके हाँ कुलदीप, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5 इक्वल टू 5, हाँ तो 5 इक्वल टू 5 तो होता ही है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो 5 की वैल्यू तो प्रिंट ही हो जाएगी। जब यहाँ पर x की वैल्यू मेमोरी में 6 हो जाएगी, तब यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगी, फिर व्हाइल लूप की बॉडी में ये दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा जब तक कि ट्रू है, यानी या तो x की वैल्यू 5 से कम हो या इक्वल टू 5 ना हो जाए, यानी 5 के बराबर हो जाए। तो वैल्यू बदल रही है x की, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और एक टाइम पे 5 हो जाएगी, तब वो 5 से मैच कर गई, और जैसे ही 6 होगी तब मैच नहीं करेगी। कुलदीप, आपका डाउट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम पार्ट को ऐड करते हैं। तो कौन से पार्ट को ऐड करने जा रहे हैं? हमारा क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया वो था 1 to 5 को प्रिंट करना, या नेम को 5 टू प्रिंट करना। तो क्वेश्चन हमारा था 1 से 5 तक की चीजों को प्रिंट करना। तो हमने यहाँ पर 1 to 5 ले लिया कि ठीक है, 1 to 5 हमारे पास नंबर्स जो है प्रिंट हो जाएं अगले स्टेप के लिए। अब ये क्वेश्चन जब हमारा है, तो इसी में एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है ये हमारे पास 1 to 10 के लिए कहे, 1 to 10 के लिए कहे, लेकिन इस 1 से 10 के बीच में हमें कौन सी नंबर लानी है? हमें इवन नंबर लानी है। माई गोल इज टू गेट द इवन नंबर बिटवीन 1 to 10, यानी 1 से 10 के बीच में जितनी भी इवन नंबर हैं उन सब इवन नंबर को लाना है। तो ये तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर पता है कि ठीक है, लूप जो हमारा चलेगा दैट विल बी वर्किंग फॉर 10 टाइम्स, लूप जो हमारा होगा वो 10 टाइम चलेगा पूरा पूरा ऐसे, ठीक है। और इस समय जब हमारे पास वैल्यू जो आएंगी बदल बदल के, तो वो वैल्यू हो सकती हैं कि हमारे पास
कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, इधर वी कैन टेक x और वी कैन टेक i। तो बहुत सारी बुक्स में या पीडीएफ आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको इस तरह से मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर i एक वेरिएबल हो सकता है, x हो सकता है, कोई भी मीनिंगफुल वेरिएबल आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा लॉजिक क्या है कि 1 से 10 के बीच में मान लो हमने नंबर तो प्रिंट कराना सीख लिया कि ठीक है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे, और हम चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 10 तक की जाएंगे, ठीक है। तो जब 10 पे हम पहुंचेंगे तो इवन नंबर का लॉजिक क्या है। अब हमने लास्ट इफ एल्स का जब सेशन किया था तो उस लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि इवन का लॉजिक क्या होता है। तो कोई भी बता सकता है इवन का लॉजिक क्या होता है। तो 2 से मॉड करेंगे तो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। हाँ, किसी भी नंबर को हम अगर, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, वरना इवन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। सपोज हमने कोई नंबर 8 ले लिया और 8 को हम जब 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 0। यानी हम जब नॉर्मली जैसे जनरल मैथ्स करते थे तो 2 4 जा 8, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो मॉडुलो ऑपरेटर जो है चेक करके बताएगा कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसका इवैल्यूएशन जब होगा, तो अगर ये जब एग्जैक्ट 0 बन जाएगा तब हम कहेंगे कि 0 डबल इक्वल्स 0। तो यानी कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेलेंट हो जाएगा एकदम 0, यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू भी 0 हो गई, राइट साइड की वैल्यू 0 हो गई। तो हम अपने क्वेश्चन में जब आएंगे, जब हम लूप चला रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास i की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 एंड 9 एंड 10। अब ये जब अंदर आएगा तो हम यहाँ पे एक कंडीशन केवल ऐड ऑन कर देंगे कि अगर i की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया जा रहा है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है, 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब उस वाली i की वैल्यू को प्रिंट करा दो। यानी जिस i की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया जा रहा है और उसका रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, जब 0 आ जा रहा है, तो उस सिचुएशन में उसी वाली i की वैल्यू को प्रिंट करा दो। तो अगर हम इसका यहाँ कोड लिखें तो हमने यहाँ पर दे दिया i इक्वल टू 1 और हमने यहाँ पे लगा दिया while i लेस इक्वल्स 10, राइट। अब यहाँ पे हम केवल एक कंडीशन पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे हमने दे दिया इफ i मॉडुलो 2 इक्वल्स 0। तो फिर से कंडीशन है, तो यहाँ पर हम जिस i की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, उसी i की वैल्यू को यहाँ पे हम नॉर्मली प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट। तो i की वैल्यू प्रिंट करा दिया और प्रिंट कराने के बाद हम i का 1 से इंक्रीमेंट भी करना नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि इंक्रीमेंट अगर 1 का नहीं किया तो ये 1 से 10 तक की नहीं जाएगा। अगर ये भूल गए तो अभी मैं इसका दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। ये इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। ये हमारा एक सिंपल सा पाइथन का कोड हो गया कि हम 1 से 10 के बीच की सारी इवन नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं। अगर हमें ऑड का लॉजिक लिखना होता तो जस्ट इसका उल्टा कि अगर n मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी 0 ना हो। तो सपोज हमने जैसे ले लिया 7, तो 7 मॉडुलो 2 हमने लिखा, तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर अगर चेक करा जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, और 1 इक्वल्स टू 0 नहीं, तो ये 0 नहीं है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसा ये कह रहा है कि n मॉडुलो 2 n को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो, तब वो ऑड नंबर हो गई। तो ठीक है, हम ऑड के केस को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हम ऑड का लॉजिक यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ठीक है ऑड का क्वेश्चन हमें बनाना है, ठीक है यहाँ पे करते हैं ऑड वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने दे दिया i इक्वल टू 1 और यहाँ पर लगा दिया while। अभी तो while के अंदर एक ही कंडीशन है, आप कई सारी कंडीशन लगा सकते हो, डिपेंड करता है। i लेस इक्वल्स यहाँ पे हमने दे दिया 10, ओके। और यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना रहता है, यहाँ पे दे दिया i
मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, और इंडेंटेशन के लिए यहाँ पे तो हमने इसी वाली आई की वैल्यू को यहाँ पे नॉर्मली हमें प्रिंट करा देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे और आई का यहाँ इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। तो ये ऑड का लॉजिक हो गया कि 1 से 10 के बीच की ऑड नंबर्स और 1 से 10 के बीच की इवन नंबर। तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको करके देखते हैं एक बार। लेट अस डू इट। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर हम आगे हम लोग और डिटेल में जाएंगे। तो लूप के अंदर लूप पढ़ेंगे, हमारे पास नेस्टेड लूप्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप करने वाले हो। ओके, तो लेट मी कमेंट ऑल दिस पार्ट। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी हमें नीड नहीं है फिलहाल, और ब्रेक पॉइंट भी मैं हटा दे रहा हूँ। अभी ब्रेक पॉइंट जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे लगाएंगे, अदरवाइज ब्रेक पॉइंट भी हटा दे रहे हैं। यह करते हैं, नया को प्रोग्राम ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ले लिया न्यू प्रोग्राम, तो यहाँ पे नाम रख दिया loop2.py, दैट्स इट। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया i इक्वल 1, और यहाँ पर दे दिया व्हाइल जब तक कि i की वैल्यू स्मॉल है या इक्वल ना हो जाए 10 के, तब तक चलते जाओ। अब ये हर बार i की वैल्यू को लाएगा, ठीक है। तो अब हम जैसे पुराना क्वेश्चन किया था ओल्ड वाला, तो ओल्ड वाले क्वेश्चन में हमने 1 से 10 तक प्रिंट कराया था, तो उस वैसे ही हमको यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करना है। तो अभी मैं शॉर्ट हैंड नहीं यूज करूंगा, दैट्स इट। तो अब हो गया हमारा ये 1 से 10 का हमारा क्वेश्चन हो गया कि 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। अभी हमने इसमें कोई अपना लॉजिक नहीं लगाया है। तो 1 से 10 तक हमारे पास ये देखो वैल्यूज आने लगी। अब हम यहाँ पे प्रिंट ना करके अपने कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट द कंडीशन। तो ये मैं कमेंट लिख दे रहा हूँ जिससे हमें पता रहे कि हम यहाँ पे आखिर काम क्या कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट द कंडीशन, तो हम कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम दे देंगे इफ, और इफ के अंदर हम कंडीशन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे i मॉडुलो 2, अगर i को 2 से डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसी i की वैल्यू को आप प्रिंट करा दो, बस हो गया हमारा काम। ओके, तो रन करते हैं और फिर उसके बाद इसका ड्राई रन देखते हैं डीबग करके। तो ये देखो, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो केवल इवन नंबर्स आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, दैट्स इट। तो ये लॉजिक हमारा था। अब अगर डीबग करके देखें तो हमें, जैसे हमने यहाँ पर ड्राई रन किया था फ्लो चार्ट बना के, वैसे ही हम यहाँ पे कंडीशन पे ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं और एक बार आपको डीबग करके पूरा दिखा दे रहे हैं, जिससे चीज़ें आपके सामने क्लियर रहे कि i की वैल्यू मेमोरी में ये कैसे चेक कर रहा है। तो इनिशियल वैल्यू देखो, हमें पता है कि हमें 1 से लेना था, तो ठीक है। कंडीशन यहाँ चेक करने आ रहा है 1 लेस इक्वल्स 10, डायरेक्ट यहाँ पे आया i मॉडुलो 2 इक्वल 0। तो i की वैल्यू 1 है, 1 मॉडुलो 2 इक्वल 0। तो ये देखो लाइन नंबर 6 पे गया, लाइन नंबर 6 पे गया ही नहीं, इसने डायरेक्ट लाइन नंबर 7 पे, क्योंकि 1 जो है इवन था ही नहीं। नेक्स्ट इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो i की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 2 हो गई। तो जैसे ही 2 हो जाएगी, अब i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो देखो 2 प्रिंट हो गया। 1 का इंक्रीमेंट हुआ लाइन नंबर 7 पे, तो यहाँ पर i की वैल्यू हो गई 3। अगेन 3 मॉडुलो 2, तो 3 मॉडुलो 2 करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए लाइन नंबर 7 पे जंप कर गया। 1 का इंक्रीमेंट लगेगा, वैल्यू i की हो गई मेमोरी में 4, और यहाँ पर देखो 4 को जब हम करेंगे मॉडुलो 2 तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, और i की वैल्यू 4 यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल में प्रिंट हो गई। सिमिलरली 5 मॉडुलो 2 नहीं होगा, लाइन नंबर 7 पे जंप कर गया,
फिर से कंडीशन चेक करने आए, आई की वैल्यू 6 हुई, 6 मॉडुलो 2 इवन नंबर है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ये हो गया। आई की वैल्यू 7 नहीं है इवन, इंक्रीमेंट हुआ 8 अगेन, तो 8 को प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ 9, कंडीशन चेक हुई, 9 मॉडुलो 2 रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, फिर से यहाँ इंक्रीमेंट होगा 10। अब 10 यहाँ पे हो गया, तो 10 लेस इक्वल 10 इक्वल टू की कंडीशन मैच करी, फिर से आ गया व्हाइल की बॉडी में। तो अब यहाँ पे मॉडुलो होगा, 10 की वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ टर्मिनल में। अब नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू मेमोरी में 11 हो गई, और 11 ना तो 10 से छोटा है और ना ही 10 के बराबर है। दैट्स वाई यहाँ से सीधे टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब आगे कोई स्टेटमेंट था नहीं। अगर हम यहाँ इसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखते तो वो भी हम दिखा दे रहे हैं। मान लो तो व्हाइल के बाहर, तो ये जो लाइन ये थोड़ा सा ग्रे कलर में दिख रहे, तो ये अब हम व्हाइल के बाहर आ गए, तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे रहे हैं लूप टर्मिनेटेड, जिससे हमें पता चल जाए कि ठीक है लूप जो है टर्मिनेट हो चुका है, लूप इज टर्मिनेटेड। यहाँ से लूप हमारा टर्मिनेट हो गया, और अब इसको हम अगर रन कराएं तो देख सकते हैं, तो ये प्रिंट करेगा, और उसके बाद जैसे ही लूप टर्मिनेट हुआ तो लाइन नंबर 8 पे जंप कर गया, और हमारे पास यहाँ पे चीजें प्रिंट हो गई। तो ये था हमारा इवन का लॉजिक। अब अगर हम इसमें ऑड की कंडीशन लगाना चाहें तो केवल क्या करना है, हम नॉट इक्वल की कंडीशन लगा देंगे, तो हमारे पास ऑड वाला चीज आ जाएगी। तो उसको भी करके देखते हैं। तो इसी कोड में इसको मैं कमेंट कर लेता हूं, और यहाँ पे कर रख लेते हैं, और यहाँ पे सिंपल कंडीशन चेक कर रहे हैं, चेंज नॉट इक्वल टू, बस। तो अब यहाँ पर हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, और हम चाहें इसके साथ मैसेज भी कोई और देना चाहें दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल नॉर्मल आई की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो ये देखो, तो अब यहाँ पर ऑड नंबर्स को ये चेक करेगा। आई की वैल्यू जब भी 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तब इफ की बॉडी में जाएगा और उसे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये हो रही है कि पहले हमारे पास व्हाइल लूप बाहर चल रहा है, बाहर जो हमारे पास चल रहा है वो एक व्हाइल लूप चल रहा है। अगर हम जनरली देखें तो बाहर हमारे पास यहाँ पे एक व्हाइल लूप चल रहा है, बाहर ये व्हाइल का लूप है, और व्हाइल के अंदर जैसे ही आता है तो हमारे पास यहाँ पे इफ की एक कंडीशन लगी हुई है। तो हो सकता है मल्टीपल कंडीशन हो आने वाले टाइम में, तो उसे हम डील करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल फॉरवर्ड लूप हो गया। फॉरवर्ड लूप का मतलब हो गया कि हम चीजें बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते जा रहे हैं, यानी हमने 1 से 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करके देखा। अब अगर हम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं, या रिवर्स ऑर्डर को कह लें एक तरह से उल्टा, तो हमारे पास मान लो क्वेश्चन ऐसा होता 5 4 3 2 1 समथिंग लाइक दिस। तो हमें थोड़ा सा लॉजिक में चेंजेस लाने होंगे, जिसमें हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। तो अब हमें पता है कि आखिर हमें कहाँ से वैल्यू लानी है, 5 से चलना है, और कब तक चलते जाना है, जब तक कि हम 1 पे ना पहुंच जाएं। यानी एक एक का डिक्रीमेंट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूं तो हमें चलना कहाँ से है, स्टार्ट कहाँ से करना है, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कौन से पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे? 5 से चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 5 ले लिया, और अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बस काम हो गया आपका। 5 से चलेंगे, कब तक चलते जाएंगे, 1 तक, यानी जब तक कि x की वैल्यू
या तो ग्रेटर देन 1 हो या घटते घटते माइनस होते होते 1 के बराबर ना हो। जब तक कि x की वैल्यू या तो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो तब तक कि आगे चलते जाओ, या जब तक 1 न मिल जाए। तो हम इसको रीड करेंगे x ग्रेटर इक्वल्स 1, यानी जब तक कि x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 है तब तक कि आगे बढ़ते जाओ और एक एक चीज को करते चले जाओ। डिलीट कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कंडीशन x ग्रेटर इक्वल्स 1। बस यही कंडीशन यहाँ कहना सीखना है, और एक बार कहना सीख गए तो आप काम कर ले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा गोल था, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x और x इक्वल टू x माइनस 1 करते जाओ। तो इसका एक प्रॉपर ड्राई रन करते हैं, और ड्राई रन करते हुए फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका ड्राई रन यहाँ कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास मेमोरी में x की वैल्यू आखिर क्या है, तो x की वैल्यू मेमोरी में हमारे पास 5 है। इस तरह से आप ब्लॉक बनाइए कॉपी पे, आप लोग करिएगा ऐसे ही। तो x की मेमोरी में 5 है। अब फिर यहाँ पे ये कंडीशन चेक करने आएगा। तो यहाँ पे अब आया कंडीशन चेक करने नंबर 1 पे। अब ये ऐसे ही चलता जाएगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, इसी क्रम में चलता जाएगा, यही ऑर्डर रहेगा। तो ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, मेमोरी में 5 है। तो कंडीशन हमारी जो चेक हो रही है 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, या तो 5 1 से बड़ा हो या इक्वल हो। तो 5 इज बिगर देन 1, तो कंडीशन हमको ट्रू मिल गई। दैट्स वाई हम व्हाइल लूप की बॉडी में अंदर आ गए। तो यहाँ पे कंडीशन हमें ट्रू मिली, इसलिए हम यहाँ पे अंदर आ गए और हमें मिल गया प्रिंट x की, x की वैल्यू को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो मेमोरी में हमारे पास 5 था, हमने यहाँ पे 5 को प्रिंट करा दिया। प्रिंट करने के बाद अब इस लाइन पे देखो क्या कह रहा है, x इक्वल टू x माइनस 1, यानी x में जो भी वैल्यू है उसमें से एक कम कर दो और फिर वापस x में स्टोर कर दो। तो 5 माइनस 1 4, तो मेमोरी में हमारे पास यहाँ पे अब हो जाएगा ओवरराइट होकर के 4 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से ये कंडीशन चेक करने आएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे आएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी 4 ग्रेटर इक्वल 1। यस, 4 अभी भी 1 से बड़ा है, एक कंडीशन मैच कर गई। व्हाइल लूप की बॉडी में x की वैल्यू को प्रिंट कराया गया। तो x की वैल्यू करंट क्या है मेमोरी में, यहाँ पे देखते जाना 4। तो 4 को प्रिंट कराया। प्रिंट करने के बाद अब फिर से ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, x इक्वल टू x माइनस 1। करंट वैल्यू क्या है मेमोरी में, स्तुति बताएंगी। स्तुति, आर यू देयर? यस सर, हाँ, x की करंट वैल्यू 4 है। वेरी गुड। हाँ, तो x की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू ओवरराइट होकर के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 हो जाएगी। फिर से यहाँ कंडीशन चेक करने आएगा, 3 ग्रेटर इक्वल्स 1। 3 अभी भी 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू मिल गई। अंदर आया, x की वैल्यू को प्रिंट किया, 3 को प्रिंट कर दिया। ओके, अब कह रहा है x इक्वल टू x माइनस 1 यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या है मेमोरी में, 3। 3 में से 1 हम एक रिड्यूस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अगेन कंडीशन बी यहाँ चेक होगी, तो फिर से यहाँ हो जाएगा 2 ग्रेटर इक्वल 1, क्योंकि मेमोरी में अभी हमारे पास करंट वैल्यू क्या है, 2 है। तो कंडीशन अभी भी हमें ट्रू मिल रही है। तो ठीक है, x की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे 2 को इसने प्रिंट कर दिया। फिर x इक्वल टू x माइनस 1 कर रहा है। तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो मेमोरी में वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, फिर से यहाँ कंडीशन चेक करने जाएगा, 1 ग्रेटर इक्वल 1। तो 1 ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन 1 1 के इक्वल होता है। तो कंडीशन अभी भी ट्रू मिल गई और प्रिंट किया x की वैल्यू को। तो x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद फिर से इस एक्सप्रेशन पे आएगा, x इक्वल x माइनस 1। तो अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो अब यहाँ पे 0 बन जाएगा
और जैसे ही ऊपर आएगा यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी 0 ग्रेटर इक्वल 1। तो यहाँ 0 ग्रेटर देन 1 ना तो 1 से ज्यादा है ना ही 1 के इक्वल है, तो कंडीशन अब हमें मिल गई फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिल गई लूप के बाहर आ जाएगा और लूप हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये डायग्राम बना के काम करना एक आपको यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। इवन नोबडी विल टेल यू टू मेक दिस डायग्राम। तो आप इस तरह से डायग्राम बनाइए, कंडीशन को चेक करिए, थोड़ा सा पेन होगा, बोलना पड़ेगा आपको, बट आप बोलना भी सीखो। फ्लो एक बार माइंड में बन गया ना कि हाँ कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मे बी कल को आप एक टीचर बनते हो, एक लेक्चरर बनते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने जाते हो या किसी कंपनी में काम करते हो, तो यू माइट बी डीलिंग विद सम मीटिंग and during the meeting you will have a good presentation skill than the other people. You might be outshining other, right? तो बिल्कुल जैसे आप कहना सीख गए तो काम हो गया टेक्निकल वे में, ठीक है। तो इसको हम इसका कोड पूरा पाइथन में लिखते हैं। लेट्स डू इट। ओके, सो लेट अस बिगिन। तो अभी हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो ठीक है, यहाँ पर मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ से हम रिवर्स, हमारा क्वेश्चन है प्रिंट नंबर्स 5 to 1। अभी केवल इतना करते हैं 5 से 1 तक। तो जैसे हमने काम करा है, जैसे हमने डायग्राम बनाया था वैसे करेंगे। तो एक हमने वेरिएबल ले लिया x इक्वल i और चलो 5 ले लिया। व्हाइल जब तक कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तब तक चलते जाओ और यहाँ पर प्रिंट कर दो किसकी वैल्यू को, i की वैल्यू को। और एक एक यहाँ पर, अब देखो एक मिस्टेक मैंने कर दिया, यहाँ पे x नहीं लेना था, मैंने वेरिएबल लिया है i, so that it should be i और i इक्वल टू i माइनस 1। एक एक वैल्यू रिड्यूस होते जाएंगे, सिंपल। तो ये रिवर्स का हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा। तो अब इसको हम अगर रन कराते हैं तो कोड देखते हैं और रिजल्ट हमारे पास आ गया है 5 4 3 2 1। तो 5 4 3 2 1 इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे i इंटू 2 कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा? सब लोग अपना अपना सोच लो और मैं किसी से पूछने जा रहा हूं, और कोई गलत होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डोंट बी साई, कोई दिक्कत नहीं, किसी से मैं पूछने वाला हूं। तो ज्योति इज देयर, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर, यस सर। हाँ, तो ज्योति आपको इसमें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में चेंज किया। अभी तक हम i की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, अब इस बार हमने कर दिया i मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इस सर इसका वो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 4 into 8 हो जाएगा, हाँ 3 into 6, 2 into 4, 1 into 2। गुड। तो यानी कि i की जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम अंदर क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमने इसको जैसे रन कराया, ये देखो, तो हमारे पास यहाँ पे डबल नंबर हो गए, राइट। तो अंदर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चल के आप पढ़ोगे कोई फंक्शन कॉल हो सकता है या कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, अभी तो सिंपल प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, दैट इज। तो अब हमने i इंटू 2 किया था, ठीक है, अब हमने फिर से i कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को लगाना भूल जाऊं, मान लो हमने सब कुछ तो ठीक ठीक कर दिया लेकिन इस स्टेटमेंट को मैंने मिस कर दिया, मैंने केवल लिखा i इक्वल टू 5, 5 ग्रेटर इक्वल 1 और प्रिंट i। तो अब होगा क्या, i की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही रहेगी, ना तो ये वैल्यू बढ़ रही है ना घट रही है। तो अगर ऐसा कहीं हम कर दें तो देखो क्या सिचुएशन होने वाली है।
ये देखो देखो क्या हो रहा है, 5 प्रिंट होता जा रहा है, और ये चला गया इनफाइनाइट लूप में, ये चला गया इनफाइनाइट लूप में। अब हमें यहाँ टर्मिनल को स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे आप मेमोरी देखोगे तो मैंने बताया था डेंजरस सिचुएशन कब हो सकती है। डेंजरस सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर मैं कोई लूप के अंदर लूप या कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो मेमोरी कितनी जा रही है, 100%। ठीक है, अगर मैं इसको डबल लूप या ट्रिपल लूप में डाल दूं तो कुछ देर का सिस्टम ओवरहीट हो जाएगा और फिर ब्लास्ट होने के चांस भी हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा लैपटॉप में ऐसा कुछ होता है, तो ये सब इसी की वजह से होता है। 100% मेमोरी, देखो ये सीपीयू का यूटिलाइजेशन यहाँ कर रहा है। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है, आपसे जब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि कितना सीपीयू यूज हो रहा है, देखो 100%, तो आई विल हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली। तो ऐसी कई बार हमारे सिचुएशन आ जाती हैं, या हम बाई मिस्टेक कभी ऐसा हम कर गए तो होता है। क्योंकि अभी ये हम लूप कर रहे हैं, मान लो आप एआई बेस कर रहे हो कोई काम, मशीन लर्निंग का कोई चीज आपने को हमने कोड लिखा, अब जिसमें हमारे पास पता लगे कि 50 बिलियन टोकन है, डेटा है, और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो फिर इस सिंपल लैपटॉप पे एक तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ना तो उतनी रैम होती है, ना जीपीयू होता है, ना टीपीयू होता है। बट इसीलिए लूप को जब भी चलाएंगे तो इन चीजों को केयरफुली करा जाता है, ध्यान रखना होता है। चलो, तो अगर कभी इनफिनाइट में चला जाता है तो उसको स्टॉप करने के लिए कैसे करना चाहिए इमीडिएटली? एक तो तरीका है कि अगर आप, दो तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं। देखो मैं इसको बता दे रहा हूँ, आपने एक क्वेश्चन जो ये पुटअप किया है, एक्चुअली ये अभी जैसे ये हम काम कर रहे हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लैपटॉप पे है, करेक्ट? ये हमारा लैपटॉप है, तो यहाँ पर हर चीज हमारे कंट्रोल में है। हाँ। ठीक, तो हम गए टास्क बार में, और टास्क बार में हमने ये वीएस कोड की प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्लोज कर दिया। है ना। तो एक तरीका तो ये होगा कि हमारे कंट्रोल में सिस्टम है, ये हमारे कंट्रोल में है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि मान लो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, क्लाउड पे सपोज कर लो, है ना, एज्योर पे आप काम कर रहे हो, या एडब्ल्यूएस पे काम कर रहे हो, अमेजन वेब सर्विसेज पे, या जीसीपी पे काम कर रहे हो, है ना, गूगल क्लाउड पे, किसी पे क्लाउड पे आप काम कर रहे हो, तो होगा क्या, हमारे पास वहां की मशीन का केवल डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, हमारे पास हमारा अपना लैपटॉप होगा, यहाँ से हम इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर रहा होगा, इसको बोलते हैं वीडीआई। तो यहाँ से हम लॉगिन पासवर्ड अपना डालेंगे और यहीं से काम कर रहे होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्रोसेस को स्टॉप करें। तो एक तरीका केवल यही बचता है कि आप इसकी प्रोसेस को स्टॉप करने का आपने कोड रखा हो, तो इसीलिए आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इधर इट इज अ जावा और पाइथन, राइट, और सी शार्प, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें ये चैप्टर होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अगर इस तरह के हमारे पास मेमोरी का एक्सेप्शन आ गया या कोई फाइल का एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, एरर यानी प्रॉब्लम, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड में लिखते हैं कि अगर कहीं बाई चांस कहीं गलती से ऐसा कुछ हो गया, तो इस एक्सेप्शन में हमने लिखा है कि तुम ये एक्शन तुरंत कर दो, एक ईमेल मुझे कर दो, एक एसएमएस डाल दो, और इस सर्वर को तुरंत स्टॉप कर दो, सारा कोड यहाँ लिखा होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तरीके हम लोग फॉलो करते हैं नॉर्मली, क्योंकि यहाँ का सिस्टम हमारा डायरेक्ट नहीं है। मैं इंडिया में बैठा हूँ, हो सकता है मैं नॉर्थ अमेरिका के सर्वर पे काम कर रहा हूँ, तो नॉर्थ अमेरिका के सर्वर पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास केवल है मैं कोड से मैनेज करूँ, या हम सेल स्क्रिप्ट चलाते हैं, एक होती है सेल स्क्रिप्ट, तो आगे आप लोग पढ़ोगे मैं भी, तो सेल स्क्रिप्ट में हम कोड लिख के रखते हैं कि इन चीजों को तुरंत टैकल कैसे किया जाए, तो उसको बोलते हैं कि सिस्टम डायग्नोस्टिक, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स में आता है वो। ठीक है, तो लूप का आज एक और हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन आई विल
टेक पॉज और टुमारो वी विल कनेक्ट सेम टाइम। तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो उसको पहले यहाँ थ्योरेटिकली एक समझ लेते हैं और फिर कल फिर आगे करा जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल ये है कि जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय है, एक कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय हैं, ठीक मान लेते हैं, तो ये रियल लाइफ का एग्जांपल होगा। और हमारे पास सपोज कर लो 10 एम्प्लॉय हैं। इस तरह से कितने एम्प्लॉय हैं? 10। तो किसी की सैलरी 50K है, किसी की सैलरी 80K है, किसी की 70K है, किसी की 80K है, किसी की 90K सैलरी है, किसी की 120K सैलरी। तो इस तरह से ये एम्प्लॉयज की सैलरी दी हुई है, राइट। इस तरह से कोई क्वेश्चन हम सपोज कर सकते हैं। तो इनमें से हमें देखना है, इनमें से हमें ये देखना है कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 80,000 से अबव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक वैल्यू को इसमें से निकालना पड़ेगा कि एम्प्लॉय है तो इसकी सैलरी निकालेंगे, फिर यहाँ इफ की कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर ये ठीक है 50,000 से ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अभी हम क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर नहीं बता रहे हैं। या हमारे पास इफ एल्स के और फॉर लूप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे हमने ये वाला कर लिया हम लोगों ने 1 2 3 4 5 n नंबर तक। आपने रिवर्स वाला भी कर लिया 5 3 4 2 1, ये वाला भी कर लिया। इसके बीच में आपने इवन ऑड नंबर भी कर लिए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 to 10 के बीच में जितनी भी नंबर आती हैं इनका सम हमें निकालना है। इनका हमें क्या निकालना है? सम, ठीक। तो 1 से 10 तक की वैल्यूज का टोटल का सम क्या आएगा, यानी कि 1 + 2 + डैश 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 कहाँ तक की 10। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है n = n + 1/2। तो इससे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, बट हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, वाई हम लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? आप जब भी एक प्रोग्रामर होते हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हो, तो आपको ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसे मान लो आपने एक कोई वेबसाइट है जिस पे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, राइट, पिज्जा ऑर्डर करते हो। तो अब पिज्जा की जो वेबसाइट है उस पे क्या हो रहा है कि ऑर्डर लगातार आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, और ये सारे ऑर्डर कहीं पे रिकॉर्ड भी हो रहे हैं कि ये ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आया, ये सारे ऑर्डर रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। तो हमको 1 by 1 ऑर्डर पे जाके कुछ ना कुछ काम करना होगा। तो इसको बोलते हैं कि वैल्यूज को जा करके चेक करना। तो उस सिचुएशन में हमको लूप की जरूरत पड़ सकती है, या हो सकता है कि जब हम कोई डेटाबेस पढ़ेंगे तो उसकी प्रोग्रामिंग करना होता है। तो इन चीज़ों को आगे हम रियल लाइफ से भी ऐड ऑन करके देखेंगे कि ठीक है, अभी तो हम कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, फिर रियल लाइफ में कैसे काम होता है आगे देखें, क्योंकि ये बड़ा डिटेल्ड चैप्टर है। मेरा मानना है कि अगर आपने इफ एल्स अच्छे से पढ़ लिया और लूप पढ़ लिया तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मतलब कोई डाउट ही नहीं रहेगा। क्योंकि ये दो ऐसे पार्ट होते हैं ना, इफ एल्स और लूप, ये सारे जिनका यूज आगे हर जगह पे है। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, और टुमारो आई विल बी कनेक्टिंग एट 9 PM। आप लोग कनेक्ट होइए और आगे क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू। थैंक्स। Thank you, sir. ओके, बाय।